Good morning students, my name is Subhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. Okay, so in the last topic we are complete the chapter number 1, the vector analysis or vector field. उसमें हमने देखा था कि there are the three basic coordinate system, Cartesian, cylindrical and spherical systems, and the magnetic field, how to work with the system and how to convert the one coordinate to another coordinate system, और उसके एग्जांपल्स देखेंगे. नाउ अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, द कूलम्स लॉ एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो कूलम्स लॉ के बारे में हमको पता है. सो वो कूलम्स लॉ में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरह से अप्लाई करते हैं वो देखे हैं. नाउ in the magnetic field we can convert the Coulomb's law to the magnetic field. So start with the today's topic, the Coulomb's law and the electric field intensity with the example. So first of all, the electrostatic is very important setup in a study of the engineering of electromagnetics. So the electrostatic is a science related to the electric charge which are the static and that is are the rest. So and the electric charge has the effect in the region or the space around it. So the region is called the electric field of the charge. जैसे ही बेस्ट एग्जांपल है उसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि अगर एक पेज पे हम मैग्नेट रखते हैं और आयंस वेफर उस पर पुटअप करते हैं तो दे हैव सम वन डिज़ाइन एंड दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो सच एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट वेरी विथ द टाइम. सो द टाइम इज invariant and are called the static electric field. So the study of the such a time invariant electric field in the space or vacuum produced by the various type of the static charge distributions is called the electrostatic. So in this chapter we first study the two fundamentals law governing of the electrostatic field. The name is the Coulomb's law and Gauss law. So both these law have the experimental basis. So the Coulomb's law is applied is finding the electric field due to the any charge distributions, and the Gauss law is easier to use when the distributions is symmetrical. So now start with the Coulomb's law. So the study of the electrostatic start with the study of the result of the experimental performance by the engineer from the French army engineers. The name is the Colonel Charles Coulomb, and the experiment are related to the force exerted between the 2 points charge and which are placed near each other. The force extent is due to the electric field and produced by the point charge. So in the 1600 years ago, the Dr. Gilbert, the physicians from the England, who published the first major classification of electric and the non-electric materials. So he stated that the glass, sulfurs, ambers and the some others materials not only draw to the themselves straw and chaff, but all the metals, wood, leaves, stone, earth, even water and oils are not generate the electric fields. So the Charles, in the following centuries, the French army engineers, the Colonel Charles Coulomb, performed the elaborate the series of the experimental using the device invented by the himself. You can see the figures. And the Coulomb's could determine the quantitatively the force extended between the two objects and each having the static charge of electricity. So here wrote the
seven important treatises on the electric and the magnetism that develop the theory of the attractions and the repulsions between the bodies of the opposite and the same electric charge. So जैसे हमने देखा कि द मैग्नेट्स में अगर सेम पोल्स है तो रिपल टू ईच अदर्स एंड द अपोजिट पोल्स है तो दे हैव द एट्रैक्टिव ईच अदर, उस बेसिस पे एक कूलम्ब्स लॉ डेवलप किया. सो द पॉइंट चार्ज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट चार्ज मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज विच सेपरेट ऑन द सरफेस और द स्पेस द होल जियोमेट्रिक dimensions are very very small compared to the others dimensions, and in this which the effect is electric field is to be studied. So the Coulomb's law says that the Coulomb law states that the force between the 2 point charges q1 and q2 is directly proportional to the product of charge and the inversely proportional to the square of the distance between them. As we know that, so the charge can be positive or negative, and the charge is actually the deficiency or the excess of the electrons in the atom of the particles. So the electron process the negative charge, and so the deficiency of the electrons produce the positive charge while the excess of the electron process. उस पर जब प्रोसेस करते हैं तब वो चार्ज विल बी चेंज. सो द चार्ज इज मेजर्ड इन द कॉलम्स and the smallest possible charge is the corresponding to the charge on the electrons. So 1 coulombs of the charge is defined the charge process by the number of electrons. So as a statement, the Coulomb's law state that the act along the line joining 2 points charge, यानी कि दोनों पॉइंट्स चार्ज होने चाहिए, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सेम, अगर मैं सेंटर पॉइंट से कंसीडर करता हूँ तो दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस से होने चाहिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट होगा द फोर्स इज इक्वल टू के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर. हियर द के इज़ द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, यानी कि के कॉन्स्टेंट्स है. हमने इक्वेशंस देखा था कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q1 q2 बाई आर यानी कि डिस्टेंस ऑफ द टू चार्ज. सो द फोर्स इन द न्यूटन, सो द के इज 1/4 पाई E0. E0 इज कॉल्ड द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. अगर जो मटीरियल की परमेबिलिटी में कंसिडर करता हो तो दिस इक्वेशंस इज चेंज 1/4 pi E0 ER. Okay, so therefore the force is equations is F equal to 1/4 pi E0 q1 q2 upon R. So the force act along the line joining the two charges, and it is the repulsive if the charge are alike the sign, and attractive if the are the opposite signs. So these are the repulsions because the सेम चार्ज तो अपोजिट होगा. तो दिस वन इज़ दी एक्चुअली लॉस सेज दैट द q1 एंड q2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, तो फोर्स उस पर सेंटर पॉइंट से कितना फोर्स लगेगा. अगर दो मैग्नेट में सेम पोल को नज़दीक लाऊंगा तो वो रिपल एक दूसरे से दूर होंगे, तो वो सेंटर पॉइंट से किस तरह से कैलकुलेट करना है. तो F इक्वल टू, जैसे के की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो 1/4 पाई E0. सो द q1 की वैल्यू, यानी कि एक मैग्नेट की पोल की वैल्यू पता है, दूसरे मैग्नेट की पोल की वैल्यू पता है, और तो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वो वैल्यू पुटअप करने के बाद मुझे फोर्स कितना लगेगा वो मिल सकता है. एंड द अट्रैक्शंस, एज वी नो दैट अगर अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्शंस ऑफ द टू इन द सेम. सो नाउ द अब बात होगी पोजीशंस वेक्टर की. अब हमने जो देखा, जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट में हम अप्लाई करते हैं उसके बारे में. नाउ अब हम मैग्नेटिक फील्ड में कूलम्ब्स लॉ को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे. सो द पोजीशंस वेक्टर ऑफ द पॉइंट चार्ज q1 एंड q2 आर रिप्रेजेंट बाय द r1 एंड r2. अब जो हम चार्ज q1
और Q2 कंसीडर करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में R1 R2, द फोर्स इज रिप्रेजेंट बाय F12, यानी कि एक से दूसरे पर फोर्स लगता है. सो रिप्रेजेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2, यानी कि दो की वजह से फर्स्ट को फोर्स लगता है. सो दिस वन इज द टू चार्जेस एंड दिस वन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ज़ीरो. सो ज़ीरो से लेके Q1 पे जो डिस्टेंस है वो R1 और चार्ज के फोर्स लगेगा तो F12. ज़ीरो से यहाँ पे फोर्स लगेगा एक की वजह से दूसरे पे आएगा तो 2 1, द टोटल R एंड दिस वन इज़ द रेफरेंस बाय द R1 एंड R2. नाउ सो दिस आर द इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट अवर द मैग्नेटिक सर्किट्स, मैग्नेटिक्स फील्ड. सो द R यानी कि डिस्टेंस जो Q1 और Q2 पे है, तो द Q1 माइनस Q2 और R1 माइनस R2. अगर फोर्स 2 1 है तो अगर फोर्स R2 1 है यानी कि फोर्स 1 2 होगा. सो द यूनिट वेक्टर E12 इज लाइक दिस एंड यूनिट वेक्टर ऑफ 2 1 इज लाइक दिस R. ओके, देन F इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 4 पाई E0 R, यानी कि डिस्टेंस स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट लाइक दिस और R, सो R स्क्वायर है तो R क्यूब हो जाएगा यहाँ पे. दिस वन इज द R क्यूब. अब नाउ यहाँ पे क्या होगा कि एक फोर्स अगर मैं दूसरे पे कंसिडर करता हूँ तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा अगर मैं 2 1 फाइंड करना है. सो हियर यू कैन सी द equations. F12 is equal to the minus 2 1. So when we have the number of point charge, so to determine the force on the particular charge due to all the another charges, so we apply the principle of the superpositions, and if we have the n number of charge, so the force equations. अभी यहाँ पे क्या है कि मैंने दो चार्ज कंसीडर किए, बट देयर आर द नंबर ऑफ चार्ज. अगर एक दो से ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं तो उस पे कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करने के लिए एक जनरल इक्वेशन है. अगर नंबर ऑफ चार्ज है तो F12 इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई E0, दैन द I इक्वल टू 1 to n द Q1 QI, यानी कि यहाँ पे जितने चार्ज है वो इंटू R माइनस RI. R माने के जो ज़ीरो से लेके जो चार्ज है I वैल्यू I चार्ज है उसका डिस्टेंस और अपॉन दी उसका होल क्यूब. सो दीज आर दी रिप्रेजेंट द कूलम्ब्स लॉ. नाउ अब उसके बारे में एग्जांपल्स देखते हैं. सो हियर द चार्ज Q1 इज गिवन द 3 इंटू 10⁻⁻4 कूलम एट अ पॉइंट M दिया हुआ है 1 2 3, एंड द चार्ज ऑफ द Q2 द वैल्यू इज़ -4 कूलम एंड वो वैल्यूज़ दी है यानी कि वो पॉइंट है 205. सो आर लोकेटेड इन द वैक्यूम. सो डिटरमाइन द फोर्स एक्सिट ऑन Q2 बाय Q1, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है F12. सो द डिस्टेंस ऑफ द R12 इज R2 माइनस R1. सो R2 क्या होगा 2AX 0AY 5AZ माइनस 1AX 2AY एंड 3AZ हमको पता है. देन आफ्टर वी कैन फाइंड द वैल्यूज. सो 2AX माइनस 1AX, सो 1, देन 0 माइनस 2 यानी कि 2AY, 5 माइनस 3 यानी कि 2AZ. सो 1AX माइनस 2AY. वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द R. सो अंडर रूट ऑफ 1 square plus 2 squares plus 3 squares, the answer is 3. Then again find the unit vectors. So unit vector is 1 by 3 1AX minus 2AY plus 2AZ. Now our equations, the F21 is equal to 1 upon 4 pi E0 Q1 Q2 upon R1 into unit vectors. So our equations is
1/4 pi E0 value is 8.854 into 10⁻12 permeability. Then Q1 values is 3 into 10⁻4 and Q2 is 10⁻4 minus 3 square into unit vector क्या है 1/3 1x minus 2ay plus 2az है. तो इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -10ax प्लस 20ay माइनस 20az. इज अ सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है. दे हैव द टू चार्ज Q1 Q2 दिया हुआ है, उसका पॉइंट दिए गएंगे. तो पॉइंट को पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है. देन आफ्टर फाइंड द सिंपली वेक्टर फॉर्म में हमको करते थे कि वी कैन फाइंड द डिस्टेंस r, then find the values of magnetic r, then after unit vector and put the values in the force equations. Okay, now the second examples, अब वही चार्ज दिए गए हुए हैं. सो द वैक्यूम फॉर्म डिटरमाइन द Q1 by Q2. अगर मुझे दूसरा फाइंड करना है तो F1 इक्वल टू F2 माइनस F2, तो 1/4. तो ये जो यहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. So electric field intensity is if any other similar charge Q2 is brought near to the Q1 and Q2 is express the force. So in fact if the F2 is move around the Q1 still the Q2 express the force. यानी कि अगर दो चार्ज को एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं तो एक की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो लेट अस कंसीडर द वन चार्ज से द Q1 एंड फिक्स्ड इन द पोजीशन इन स्पेस. नाउ इमेजिन दैट वी कैन इंट्रोड्यूस द सेकंड चार्ज. अब क्या करेंगे, अब Q1 को हमने एक जगह पे प्लेस किया है तो दे हैव सराउंडिंग देयर मैग्नेटिक फील्ड. नाउ अब उसी फील्ड में हम एक चार्ज रखेंगे, द यूनिट इज चार्ज दैट वी कैन मूव अराउंड दी. अब उसको मैं अलग अलग उसके अराउंड में मैं मूव करता हूँ Q2 को. सो वी नो दैट देयर इज एग्जिस्ट एवरीवेयर द फोर्स ऑन दिस सेकंड चार्ज. सो दिस सेकंड चार्ज इज displaying the existence of the force field. So force on it's given by the Coulomb's law as. अब क्या होगा कि जो फिक्स्ड मैंने Q1 चार्ज रखा हुआ है और Q2 को मैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पे भी रखूँगा तो दे हैव दी जनरेट दी फोर्स. तो वो फोर्स कितना होगा, तो जैसे हमने Coulomb's लॉ में देखा वही होगा, क्योंकि Coulomb's लॉ इज सेम दैट के इफ़ द रिपल द सेम पोल इज पुटिंग नियरेस्ट टू ईच अदर्स तो फोर्स इज जनरेटेड दैट. तो वही हुआ यहाँ पे भी. So this force is called the force per unit charge is given is F2 upon Q2 equal to 1/4 pi E0 Q1 upon R12 square into unit vector. अब यहाँ पे क्या किया मैंने, पर्टिकुलर एक चार्ज के लिए फाइंड किया. उसमें क्या Coulomb's लॉ में क्या था कि भाई रिपल चार्ज फोर्स कितना अगर लगा है वो हमको पता चल गया, पर पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स है वो पता चलता नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि F2 by Q2 कर देंगे, क्योंकि मुझे Q2 का फोर्स फाइंड करना है कि Q2 पे कितना फोर्स लगा है, क्योंकि Q1 इज द फिक्स. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is measured by the unit Newton per coulombs and the voltage per meters. This one is the unit of the electric field intensity E. So E is equal to F by Q. जैसे ओम में क्या होता है रेजिस्टेंस में, so R equal to V by. In the similar way electrical find E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इक्वेशन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन कूलम. सो हियर द इक्वेशंस 1/4 pi E0 Q1 upon R12 square into unit vector. Now the field of the single point charge can be written as. अभी सिंगल पॉइंट चार्ज फाइंड करने के लिए E इक्वल टू 1/4 pi E0 Q upon R square into unit vector R. यही इक्वेशंस है, उसको पर्टिकुलर एक फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है पर्टिकुलर चार्ज के लिए. सो हियर द एयर इज द यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्ट फ्रॉम द पॉइंट एट विच द पॉइंट चार्ज क्यू इज़ लोकेटेड। डायरेक्ट पॉइंट यानी कि ये जो जिसकी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है वो जहाँ पे मैंने रखा है वो, और फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट होगा लोकेटेड। सो द पॉइंट एट विच ई इज़ डिजायर्ड और मेजर्ड। So unit of E is represented like this: force upon unit charge equal to Newton upon Coulomb. So method of obtaining the characteristic system. So the consider the charge Q1 located at point A, और उसको मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने रखा है x1, y1 एंड z1, एंड दूसरा पॉइंट D लिया है, so x, y, z. Then the each point the B can be obtained using the step is like this. अब देखो मैंने x, y, z कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है, यहाँ पे O उसको रेफरेंस है और ये एक लाइन ली हुई है, तो यहाँ पे जो चार्ज है उसको x1, y1, z1, B, x, y, z, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज़ r और यूनिट वेक्टर ऑफ AR. सो फर्स्ट पॉइंट हमको क्या करना है, द पोजीशंस वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी। हमको जो स्पेस है उसमें जो ए एंड बी पॉइंट है वो पहले मेंशन करना है. सो हियर दी आर ए इक्वल टू वेक्टर ए एंड आर बी इक्वल टू वेक्टर बी. तो इक्वेशन इज यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है, वन टाइप ऑफ द कोफिशेंट दिया हुआ है, तो x1 ए एक्स प्लस y1 ए वाई प्लस z1 ए जेड. In similar way, the B is equal to the AX plus AY plus AZ. Now the step 2, the find the distance R, direction from A to B. तो हमको पता है कि what is the how to find the distance. So R equal to B minus A. So coefficient is minus B to A in the X, Y, Z forms. Now step 3, find the unit vectors. The unit vectors values, we know that the mode of R, vector of R upon mode of R. Step 3, you can obtain the magnetic field E at a point B. अब B पे मुझे point find करना है, because of the one point A is my fix. So E equal to Q upon 4 pi E0 R square into unit vector R. So unit vector R is represented by vector of R upon mode of R. Step 5, the magnitude of E is Q upon 4 pi E0 R square, voltage per meter. So these are the steps to find the magnitude of E, or find the values of electric field intensity E. Now consider the charge Q1, Q2 और Q3. अब हम क्या करेंगे, ये मैंने पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट पे और दूसरे एक पॉइंट को मैंने रेफरेंस लिया है, बट अगर नंबर ऑफ चार्ज है, सो कंसीडर द चार्ज Q1, Q2 अप टू Qn एंड द कंबाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑब्टेन एट अ P पॉइंट. सो द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली द R1, R2 एंड अप टू Rn. सो लाइक दिस वन, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यहाँ पे P पे Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn एंड द डिस्टेंस इज R1, R2, R3 अप टू Rn. So these are the equations, the additions of all the intensity E1 plus E2 plus E3 up to En. So this one is Q1 upon 4 pi E0 R1 square unit vector of R1 up to Rn. So इसको सिंपली एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 upon 4 pi E0 are constant, the sigma of I equal to 1 to n Q1 upon Ri square, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर चार्ज into unit vector of Ri. And the unit vector of Ri is find the Rp, यानी कि रेफरेंस पॉइंट माइनस चार्ज डिस्टेंस अपॉन मोड ऑफ दिस वैल्यू. नाउ टेक वन एग्जांपल. अब चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 0.3 माइक्रोकूलम एंड इज़ लोकेटेड एट पॉइंट दिया गया है 25 माइनस 30 15. सो ये वैल्यूज़ दी है सेंटीमीटर्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर करना है. ओके, द सेकंड चार्ज दिया है 0.5 माइक्रोकूलम्स एंड इज़ लोकेटेड इन द बी, वैल्यूज़ दी गई है. एंड द फील्ड इंटेंसिटी
ई, तो हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट दी ओरिजिन से कितना होगा, और पी, अगर पर्टिकुलर पॉइंट से पी दिया हुआ है तो वैल्यूज़ दोनों की क्या होगी. सो नाउ द फर्स्ट वन इज वी कैन कन्वर्ट दी सेंटीमीटर टू मीटर्स, ऑल आर इन मीटर्स, 0.25, then minus 0.3, minus 15 and etc. Origin means 0, 0, 0. Now the first one is we can find the intensity at the origin. So EA plus EB करना है. So first of all find the EA. So EA find करने के लिए QA upon 4 pi E0 A1 square ER E1 in similar way B1 B1. So first of all ए फाइंड करने के लिए वी कैन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द A1, तो 0 to 0.25 EX प्लस 0 प्लस 3x प्लस AZ, मुझे यूनिट वेक्टर में डिस्टेंस मिल जाएगा ओरिजिन से. देन आफ्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, तो 0.4183 मीटर्स. In similar way we can find the values of the B at the origin. Again we can find the B. So put the values. So Q1 की वैल्यू क्या है, so minus 0. microcoulomb into 0.3 into 10⁻⁻⁶ upon 4 pi E0. E वैल्यूज़ फाइंड की हमने RA1, यहाँ पे RA1 आएगा. देन यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ फाइंड कर दिए, तो दिस वन अपॉन दिस वन. सो ये पूरी वैल्यू पुटअप करने के बाद हमको आंसर ही मिलेगा एट द ओरिजिन, द इंटेंसिटी ऑफ द ओरिजिन. नाउ अब सेकंड मुझे क्या करना है, मुझे दूसरा पॉइंट दिया, अब ओरिजिन्स को निकाल के ए वर्क पॉइंट पी की वैल्यू रखनी है, द एंड द सेम प्रोसीजर फ्रॉम द ओरिजिन. तो यस यू कैन सी द वैल्यूज़, फाइंड द वैल्यूज़ एंड पुट द इक्वेशंस. So you get the answer at E at P. So if any query regarding this topic you can call me. If any questions regarding this topic you can mail me. My mail ID and the contact number is seen on your screen. Thank you.